Hello dear students, how are you all? Welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen and today we are going to begin with Glimpses of India. Okay, this is chapter 1 of your book First Flight and the name of the chapter is Glimpses of India. That means there are 3 parts in this chapter. Okay, इस chapter के अंदर 3 parts है. 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर और नाम क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस का क्या मतलब होता है? ग्लिम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स? ग्लिम्स का मतलब होता है झलक. ठीक है, यानी कि किसी की एक झलक हमें पता चलना, ऊपर से सरफेस से हमें किसी चीज के बारे में पता चलना. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है यहाँ पे कि इंडिया की 3 डिफरेंट स्टेट्स को लिया गया है यहाँ पे एंड उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ग्लिम्पसेस ऑफ दीज स्टेट्स. ओके, सो ये 3 पार्ट्स है. अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अबाउट गोवा. Coorg, it is also a place in Karnataka. Tea from Assam. Okay, and this third part is related to Assam. All right, so there are 3 different parts in this chapter and we are going to learn about these 3 different states today in an interesting manner. Of course, history जैसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा interesting way में पढ़ेंगे. All right, because this is literature and we ought to enjoy it. All right, then let's begin the chapter. So the title is A Baker from Goa and it is written by Lucio Rodriguez. Okay, you can see this image, not merely an image, but you need to understand. You can see the attire that the person is wearing. जो इसने कपड़े पहने हुए हैं, this is actually what bakers used to wear. ठीक है, बेकर्स जो है गोवा के अंदर यही अटायर पहनते थे, यही ड्रेस उनका होता था. What is this? You can see a white shirt. Okay, and trousers, and length of the trousers, length क्या है trousers की? It is shorter than a full pant but longer than a half pant. Okay, complicate ज़्यादा ऐसे confuse नहीं होना है, बड़ी simple सी चीज़ है कि full pant से short और half pant से long जो है इन trousers की length हुआ करती थी. ठीक है, और ये bamboo stick आपको दिख रहा है and ये basket दिख रही है, बस यही carry करते थे वो ब्रेड बेचने के लिए. ओके, बेकर का मतलब आपको सबको पता है, जो बेक करता है. एंड टुडे ये जो चैप्टर है बेसिकली ये किसके बारे में है? बेकिंग ब्रेड. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेड? हम अगर डिफरेंट दूसरी स्टेट्स के बारे में बात करें, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली पीपल ऑफ गोवा एंड अबाउट अदर स्टेट्स, तो ब्रेड हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है ब्रेड का? हार्डली. बट गोवन पीपल की लाइफ में, जो गोवंस हैं उनकी लाइफ के अंदर ब्रेड का बहुत सिग्निफिकेंस है. मींस इन एवरी ओकेजन ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो ब्रेड जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है उनकी लाइफ के अंदर. अलग अलग ओकेजन्स में ब्रेड जो है डिफरेंट फॉर्म में होती है बट ब्रेड होती है. Okay, so this is about the significance of bread in Goa, significance of a baker in Goa. That is why the title of the chapter is A Baker from Goa. All right, fine. So Lucio Rodriguez, who was born in 1916 and died in year 1973. He was a great Konkani essayist. He wrote several articles in English and Konkani to various periodicals and magazines. Okay, he was an Indian writer. Clear? So he was a Konkani, Konkan से belong करते थे. ठीक है, and इन्होंने कई सारे articles लिखे हैं इंग्लिश में और Konkani language जो है उसमें. He served as a visiting professor of folklore at many universities and also a professor of English in Mumbai and Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यानी कि जो बेकर है गोवान विलेज के अंदर, उस बेकर की क्या सिग्निफिकेंस है, वो आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और बहुत एंशिएंट टाइम से उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आज तक वैसी ही इंपॉर्टेंस है. क्लियर? So now we are going to begin the chapter. We are going to cover the entire text. So I want you to pay complete attention to it so that कोई भी लाइन हमसे मिस ना हो, कोई वर्ड हमसे मिस ना हो, and our concepts are crystal clear. Right? Fine. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Okay? Reminiscing means, reminiscing का मतलब होता है to recall the past. Okay? To
recall the past. Fine. And what is nostalgically? Nostalgically का मतलब होता है होम सिकनेस, हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टेइंग इन हॉस्टल और समवेयर एल्स, सो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है कभी, यू नो, मेनी अ टाइम्स व्हेन वी स्टार्ट मिसिंग आवर होम बैडली, राइट? सो यहाँ पे द नरेटर और द ऑथर हैज स्टार्टेड हाउ दैट आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड. हमने अपने बड़ों को अक्सर बात करते हुए सुना है या फिर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सुना है. ऑलराइट, to recall the past and nostalgically means you know a home sickness, अपने you know पुराने past को fond, बहुत ज्यादा fond of our past days. all right, about those good old Portuguese days, किसके बारे में याद कर रहे हैं? the Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. उन दिनों में जब पोर्चुगीज वहां हुआ करते थे, कहां पे? गोवा में. जब गोवा में पोर्चुगीज हुआ करते थे तो उन दिनों को, उन लोगों को and their famous loaves of bread. What is the meaning of loaves of bread, children? Bread, loaf, आपने सुना क्या होता है loaf? जब ब्रेड को मोल्ड किया जाता है, यानी कि शेप किया जाता है, जिस फॉर्म में हमें ब्रेड मिलता है, हमें ब्रेड बैंगल्स मिलती है, राइट? स्लाइसेस में कट हमें होके मिलता है. लेकिन उससे पहले स्लाइसेस में जब वो कट नहीं होता, ठीक है, वो एकदम पूरी शेप में होता है विदाउट कटिंग, वो होता है लोफ. ठीक है, तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या चीजें याद कर रहे हैं? उन पोर्चुगीज डेज को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जो पोर्चुगीज थे, और जो वो लोव्स ऑफ ब्रेड बेक किया करते थे. कौन? पोर्चुगीज. ठीक है, पोर्चुगीज जो हमारे जो लोव्स ऑफ ब्रेड वो बेक किया करते थे, उनको वो बहुत ज्यादा, यू नो, दे आर लॉन्गिंग फॉर इट, दे आर रिमेंबरिंग इट, और यू कैन से दे आर रिकॉलिंग देयर पास्ट. क्लियर? Those eaters of loaves might have vanished. Those eaters of loaves means यानी कि वो जो पुराने लोग थे, ancient people of Goa, जो जिन्होंने वो enjoy किया है, you know, the loaves of bread, जिन्होंने वो bread खाई है, they might have vanished. वो हो सकते हैं vanish हो गए हो. Vanish means, vanish का मतलब क्या होता है? Vanish means to disappear, गायब हो जाना, right? So vanish means disappeared. और यहाँ पे disappear का मतलब क्या है? Dead. यानी कि वो हो सकता है कि they are no more in this world, but the makers are still there. हो सकता है वो ब्रेड खाने वाले चले गए हो, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी जिंदा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़े लोग अभी तक इतने अमर हो गए हैं कि उनकी एज खत्म ही नहीं हो रही है. नो, इट मीन्स कि उनके जो यू नो चिल्ड्रन हैं, सो दे आर टेकिंग ऑन दैट बिजनेस. वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं. किस बिजनेस को? ब्रेड बनाने के बिजनेस को. ऑलराइट, सो वो पुराने जो लोग हैं जो ब्रेड खाया करते थे, दे माइट हैव वैनिश्ड. वो हो सकता है दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट जो मेकर्स है ब्रेड बनाने वाले, वो आज भी प्रेजेंट है. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. यानी कि आज भी हमारे बीच में कौन कौन से लोग हैं? मिक्सर्स यानी कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं. मोल्डर्स यानी कि जो उनको शेप देते हैं. ठीक है, मोल्ड का मतलब आपको सबको पता है, टू मोल्ड मीन्स टू शेप समथिंग. ठीक है, तो मोल्डर्स का मतलब है शेपर्स, यानी कि जो ब्रेड को शेप देते हैं और जो बेक करते हैं, यानी कि वो सब लोग आज हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं. Those age old time tested furnaces still exist. एज ओल्ड टाइम टेस्टेड. टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है? इतने लंबे टाइम से, फ्रॉम सो यू नो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स दोस फर्नेसेस आर स्टिल बर्निंग. आज भी वो फर्नेसेस जो हैं, वही फर्नेसेस इतनी पुरानी. टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है? वेरी ओल्ड. ठीक है, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस का मतलब क्या है यहाँ पे? वेरी ओल्ड फर्नेसेस. ऑलराइट, सो दोज फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं. Why? Because bakers exist करते हैं and they need those furnaces to bake the bread. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished का मतलब क्या होता है children? Extinguished का मतलब होता है बुझ जाना. यानी कि उन furnaces में, now what is furnace? Furnace क्या होता है? You all know it. भट्टी होती है ना, आग की भट्टी जिसमें आग जलाई जाती है, राइट? और बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती है. सो उस भट्टी को क्या कहते हैं? फर्नेस कहते हैं. तो वो इतनी पुरानी जो फर्नेसेस हैं, आज भी उनके अंदर आग बुझी नहीं है. क्या मतलब होगा इसका? कि दे हैव नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. इट मींस दैट द बिजनेस ऑफ ब्रेड मेकिंग स्टिल एग्जिस्ट. अभी भी जो ब्रेड बेकिंग का बिजनेस है चल रहा है, इसीलिए उस फर्नेस की जो फायर है वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई है. क्लियर?
द थर्ड एंड जिंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड एंड जिंगल? दोनों ही जो है साउंड वर्ड्स है, साउंड को डिनोट कर रहे हैं. ऑलराइट, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, यानी जो वो बैम्बू बजाते हुए आता था तो क्या साउंड प्रोड्यूस होती थी? थर्ड जिंगल. ठीक है, यू नो चिल्ड्रन कि जो साउंड वर्ड्स होते हैं उन वहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यानी कि एम्प्लॉयड है? यहाँ पे क्या है? onomatopoeia है. All right, whenever there are sound words appear in any of the text or your poem, that means there onomatopoeia is employed in that particular part. All right, so third and jingle दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही sound words है. Okay, किसका साउंड है ये? बैम्बू. यानी कि जब बेकर आता था तो वो अपनी अनाउंसमेंट कैसे करता था? उसके पास कोई बेल तो होती नहीं थी. सो ही यूज्ड टू मेक हिज अनाउंसमेंट हाउ? बाय द थर्ड एंड जिंगल ऑफ दैट बैम्बू. वो बैम्बू को जोर जोर से बजाता था सो दैट लोगों को पता चले कि यस, द बेकर हैज अराइव्ड. heralding his arrival. heralding means to announce. okay, heralding का मतलब होता है announcing. तो वो अनाउंस करता था अपनी अराइवल को कि मैं आ गया हूं. कब? इन द मॉर्निंग. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, यानी कि आज भी बहुत सारी जगहों पे व्हेन द बेकर अराइव्स वी कैन हियर द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू एंड दैट शोज दैट यस, द बेकर हैज अराइव्ड. ओके, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव. किसके फादर की बात हो रही है यहाँ पे? यानी कि जो बेकर्स है उनकी जो फैमिली के एंसेस्टर्स है. Maybe the father is not alive. उनके जो फादर हैं वो जिंदा नहीं हैं. But the son still carries on the family profession. लेकिन जो बच्चे हैं उनके, जो बेटा है वो आज भी उस फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहा है, यानी कि वो उसको कंटिन्यू कर रहा है. And that is why that is why the author is saying that we still have bakers with us. Okay, these bakers are even today known as पेडर इन गोवा. बेकर्स को किस नाम से बुलाया जाता है गोवा में? पेडर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो द बेकर्स आज भी whenever there is a baker, they do not call that person a baker. वो उसको बेकर नहीं बुलाते हैं. Instead they call him a pader. Okay. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. वो दिन में कितनी बार आते थे? 2 बार आते थे. Alright, twice a day. And वो बता रहे हैं ऑथर कि बचपन में जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त भी होते थे, कंपेनियंस भी होते थे और गाइड भी होते थे. यानी कि हमें गाइड भी करते थे, चीजें बताया भी करते थे कि तुम्हें कौन सी चीज कैसे करनी है. Okay? So he used to come how many times in a day? Twice a day. ठीक है, कब आते थे? ध्यान से सुनना, कब आते थे? Once, एक बार तो कब आते थे? When he set out in the morning on his selling round. Early in the morning आते थे. When he used to go out to sell the bread. जब वो bread निकलने early in the morning निकलते थे तब एक तो आते थे वो. And then again when he returned after emptying his huge basket. Okay, so twice a day he used to visit. First he used to come early in the morning, all right, when he was on a round of selling his bread. And secondly, when he used to come back, okay, when he used to return after selling his bread. ठीक है, so 2 बार. एक बार तो कब? जब वो बेचने निकलते थे और दूसरी बार जब वो बेच के वापस लौट रहे होते थे. So that is how he used to visit twice a day. The jingling third, again this is sound of his bamboo, woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. यानी कि हम लोग early in the morning जब सो रहे होते थे, एकदम सुबह we used to sleep, हमारी नींद किससे खुलती थी? उसकी jingling third से नींद खुलती थी. Alright, बैम्बू का जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हुए आते थे अपनी अराइवल बताने के लिए, अनाउंस करने के लिए, उस वजह से हमारी नींद खुलती थी और जैसे हमारी आंख खुलती थी हम फटाफट भागते थे उससे मिलने के लिए. Why was it so? ऐसा क्यों होता था कि जैसे ही बैम्बू की आवाज आती थी हम लोग उठते थे और भागते थे उसको ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए? Was it for the love of the loaf? क्या वो ब्रेड लेने के लिए होता था कि चलो भाई नींद खुल गई है फटाफट भागो उसको ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं और ब्रेड लेते हैं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. वो जो लव था वो ब्रेड के लिए बिल्कुल नहीं था. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. यानी कि loaves, जो ब्रेड के loaves होते थे वो तो कौन ले लेता था?
सम पैस्किन और बैस्टिन। अब ये क्या है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दीज आर द नेम्स। जैसे हमारे जो कॉमनली मेड सर्वेंट्स के नेम्स हो जाते हैं, रामू या श्यामू, सीता या गीता, ऑलराइट। सो इसीलिए इन्होंने बस ये दो नेम्स यूज किए हैं जो उस वक्त गोवा में ऐसे नाम हुआ करते थे। कैसे? पैस्किन और बैस्टिन। तो ये मेड सर्वेंट्स के ऐसे नेम्स हुआ करते थे, ठीक है। सो वो बता रहे हैं कि हम लोगों को वो जल्दी नहीं होती थी कि हमें ब्रेड लेना है। वो तो कोई भी घर का जो मेड सर्वेंट होता था, चाहे चाहे पैस्किन ले लेता था या बैस्टिन ले लेता था। सो हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वी डिड नॉट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द ब्रेड, ऑलराइट। दैट वाज बॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टिन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। ये जो दो नेम्स दे रखे हैं यहाँ पे, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इनके मीनिंग सर्च मत करने लग जाना। ये नेम्स है, किसके नेम्स है? मेड सर्वेंट्स के, ठीक है। सो जनरली इन्होंने बताया जैसे कोई भी रामू श्यामू जो मेड सर्वेंट होता था वो ले लेता था। सिमिलरली यहाँ पे द नेम्स आर सच, पैस्किन और बैस्टिन, यस। It's become a tongue twister. What we longed for were those bread bangles. हमें क्या चाहिए होता था? ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी ना। व्हाट इज ब्रेड बैंगल्स? एज आई सेड अर्लियर कि जो ब्रेड को हम लोग स्लाइसेस में कट करते हैं, सो वो क्या कहलाती है? ब्रेड बैंगल्स कहलाती हैं, ठीक है। सो दे डिड नॉट हैव लव फॉर द लोव्स ऑफ ब्रेड। उनको लोव्स नहीं चाहिए होती थी, वो पूरे लोफ नहीं चाहिए होते थे, लेकिन दे हैड लव्स फॉर ब्रेड बैंगल्स which we chose carefully, जो हम बहुत ही carefully choose करते थे अपनी पसंद से। Sometimes it was sweet bread of special make, और कभी कभी वो ब्रेड जो होती थी वो स्पेशली मेड होती थी, यानी कि उसको उसके अंदर स्वीट टेस्ट हुआ करता था। So उसका एक अलग ही मतलब it has a different flavor, and that is why we were more eager to select and choose our bread bangles. We were not at all bothered that whether we had to buy these loaves or not, because they were brought by some maid servants of the family. Clear, children? The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo stuff. यानी कि उनकी जो बैम्बू की जो स्टिक हुआ करती थी उसमें एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते थे। कैसी साउंड होती थी वो? झंग झंग, ओके। One hand supported the basket on his head, यानी कि बास्केट जो होती थी वो उनके हेड पे होती थी, ठीक है। तो एक हाथ से वो सपोर्ट में होता था। And the other banged the bamboo on the ground, यानी कि this was the scene, जैसे this is the stick, बैम्बू स्टिक है ये। सो एक हाथ से उन्होंने बास्केट पकड़ी हुई है, एक हाथ से बैम्बू पकड़ा हुआ है, and he used to do झंग 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 झंग, and बास्केट को सपोर्ट कर रखा होता था एक हाथ से, ओके। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. यानी कि whenever he used to visit our houses, so he always used to greet the ladies of the family with good morning. पहले वो बहुत politely greet किया करते थे, and then he used to place his basket on the vertical bamboo. उसके बाद वो अपनी basket जो थी वो कहाँ रख देते थे? Vertical bamboo पे रख देते थे. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. यानी कि mild rebuke, यानी कि कई बार होता है ना, कोई सामान बेचने आता है और घर के बच्चे जब भागते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं go inside, go. So mild rebuke का मतलब क्या है? Scolding, okay? Rebuke का मतलब है scolding. So mild rebuke यानी कि just ज्यादा तो डांट नहीं सकते आप किसी के सामने, हल्का सा you can just go inside like this, okay? So ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ कई बार करते हैं, right? कि हमें एकदम आंखों के इशारे से डरा के अंदर भेज देते हैं या डरा देते हैं, हल्का सा डांट देते, गो इनसाइड लाइक दिस। सो इसी तरह से जब वो बच्चे भागा करते थे तो उनको एकदम हल्का सा डांट के उनको अलग कर दिया जाता था। दे वर पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लोव्स होते थे वो किसको डिलीवर किया जाते थे? सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट जो था ही वुड रिसीव द लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हमें चाहे कितना भी डांट के अलग किया जाए, वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग किसी भी तरह से पैरापेट क्या होता है चिल्ड्रन? पैरापेट होता है एक हल्का सा एक सपोर्ट के लिए बना, बाउंड्री बनी हुई होती है लो हाइट में। तो बच्चे या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या पैरापेट पे चढ़ जाते थे एंड दे वुड पीप,
पीप का मतलब क्या होता है? झांकना। ओके, सो वो बास्केट में कैसे ना कैसे झांक ही लेते थे ऐसे, यू नो। कई बार क्या होता है, जैसे ये यू नो ये वॉल है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, कुछ बना हुआ है, एंड बाहर की तरफ उसने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये लोग यहाँ चढ़ के और यूं झांक के इसमें देख लेते थे कि इसमें क्या हमारे लिए ब्रेड बैंगल्स बची है कि नहीं बची है। क्लियर? I can still recall the typical fragrance of those loaves. Fragrance का मतलब क्या होता है children? Fragrance का मतलब होता है खुशबू. So he is, you know, recalling that fragrance कि मैं आज भी उस fragrance को याद कर सकता हूँ, you know, I still have that fragrance in my mind. Loaves for the elders and the bangles for the children. Okay, बड़ों के लिए loaves होते थे and छोटे बच्चों के लिए क्या होते थे? Bangles of bread. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और जैसे उन्हें वो बैंगल्स मिला करती थी, ब्रेड बैंगल्स जब उनकी चॉइस की मिल जाया करती थी, दे वुड नॉट इवन यू नो ब्रश देयर टीथ, सो दैट इज वेरी बैड, डोंट डू दैट एवर। ओके, कितना भी आपकी फेवरेट चीज सामने क्यों ना रखिए, never do that, you know, having something without, you know, brushing your teeth. Some sounds how, oh, don't do that ever. Okay, so यहाँ पे author क्या कह रहा है कि we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? और हम क्यों करते? Why? Who would take the trouble of plucking the mango leaf? Okay, plucking का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो ही सेइंग कि वो अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वो लोग ब्रश कैसे किया करते थे। उनके पास ऐसे ब्रश होते नहीं थे जो आज हमारे पास है, तो वो उनका ब्रश करने का क्या टेक्निक था? They used to pluck the mango leaf, okay, and उस mango leaf से they used to clean their teeth. All right, so they are saying, why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? वो कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा कि आम के पेड़ पे चढ़ के उस आम की जो मैंगो लीफ है, we are going to pluck it and then we are going to, you know, use it as a toothbrush. And why was it necessary at all? और इसकी जरूरत भी क्या थी? The tiger never brushed his teeth. अब अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए what author is saying कि टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता। ओके, the tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और जैसे ही हम गर्म चाय पियेंगे उसी से सब कुछ क्लीन हो जाएगा माउथ। ओके, so I don't know what kind of justification he is trying to give, plus please don't do this ever. All right, so he is saying, अब justify कर रहा है why did not he brush, कि the tiger never brushed his teeth. Okay, and अगर जब वो hot tea they are going to intake, everything is going to be washed up and clean up everything. All right, fine. So this was the first part, means of this chapter. Part 1 का part 1 था ये. All right, let us discuss the oral comprehension. What are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के जो elders है वो किस चीज को मिस करते हैं, किस चीज को रिकॉल कर रहे हैं? Fondly they are missing it. तो वो क्या था? They are, I'm just writing in short, children, please write the answers in a proper format. All right, so the elders in Goa were, okay, this is how you are going to write the answer. The elders in Goa were nostalgic about, I'm just writing here, otherwise you'll get confused. Were nostalgic about Portuguese days, Portuguese people, and the loaves of bread made by them. And the loaves of bread made by them, right? We read this in the beginning of the chapter. हमने इस chapter के beginning में ही पढ़ा था कि our elders are, you know, missing all these things. All right. Is bread making still popular in Goa? Yes. Yes. Bread making is still popular in Goa. How do you know? Because we have read a statement which was given by the author, and what is the statement? That the eaters have vanished, the eaters might have vanished, but we still have amongst us the mixers, the molders, and the ones who bake the bread. Okay, so you have to write that. The statement of the author
that they still have mixers हमने बताया जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, मोल्डर्स जो कि शेप देते हैं ब्रेड को, एंड बेकर्स. ओके, that they still have mixers, molders and bakers amongst them. All right. What is the baker called? Very easy. He is known as a pader. All right, but you are going to write it in a proper way. I don't know where these curves are being formed. All right. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? कब आता था बेकर? हमने पढ़ा था he used to come twice a day. All right. So the baker used to visit twice a day, once when he would go to sell his loaves of bread, and secondly, while returning after emptying his basket. Okay, this is the first part of this answer. Why did the children run to meet him? बच्चे क्यों दौड़ते थे? So you know the answer. I'm writing it in short. So you have to write the children ran to meet him. The children ran to meet him. यहाँ पे क्यों run क्यों लिखा है? Because did आया है. Okay, and did के साथ में verb का first form आता है हमेशा. Always remember this. ठीक है? तो यहाँ पे तो did आया है, that is why run इन्होंने लिखा है. लेकिन when we are going to draft the answer, we are going to write ran. We are directly going to use second form of the verb, past verb. So the children ran to meet him to select their bread bangles. Okay, sorry. Bread bangles. All right. So I hope the answers are clear to you. Fine. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. यानी कि this is the ये जो image आप देख रहे हैं, what is this? This is bowl. ठीक है? So ये कब बनाए जाते थे? Bowl. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread. ये एक sweet bread है which is known as बोल, और ये मैरिज गिफ्ट्स का हिस्सा हुआ करती थी. और अगर बोल मैरिज गिफ्ट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स द गिफ्ट्स वुड बी मीनिंगलेस. कोई मतलब नहीं है उन मैरिज गिफ्ट्स का जिसके अंदर बोल जो कि एक स्वीट ब्रेड है वो उसका पार्ट नहीं है. जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. और अगर कोई भी पार्टी है या कोई फीस्ट है, ओके, फीस्ट क्या होती है? दावत, ऑलराइट, अ पार्टी, इनवाइटिंग पीपल फॉर डिनर. और अगर कोई पार्टी है या कोई फीस्ट है तो फिर ब्रेड अगर उसमें नहीं है तो वो पार्टी भी एकदम अधूरी है. इट इज द पार्टी इज ऑल्सो इट लूजेस इट्स चार्म, मीन्स इट बिकम्स विदाउट एनी मीनिंग. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. And baker, you can just see that how bread is used everywhere, and from that you can just make out and you can understand the significance of a baker in a Goan village. इनकी जो significance है, इनकी जो importance है वो हमें कैसे पता चल रही है कि हर जगह ब्रेड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. इनकी शादी में भी ब्रेड, can't imagine. Yeah.
So the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Very interesting, isn't it? We, for us, sandwiches are part of our breakfast, or lunch. But यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताई जा रही है यहाँ पे कि इफ देर इज एन एंगेजमेंट, ऑलराइट, so it is mandatory for for the daughter's mother to prepare sandwiches. Sandwiches बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? कहाँ? जब engagement है. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. और ये जो image यहाँ पे दे रखी है, this is bolinas. Okay, these are bolinas. और bolinas, okay? So ये जो bake हो रखे हैं, these are bolinas made up of bread. Again, these are sweet bread known as bol. तो cakes और bolinas जो है वो Christmas में important है, alright? और दूसरे कोई भी festivals होंगे तो there must be cakes and bolinas, okay? Bolinas or bolinas, we don't know the proper pronunciation, so I'm using it. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Very important line, children. We can be asked this question that why do you think the baker's furnace in the village is essential? So, you know the answer that even marriage gifts are meaningless without sweet bread known as bol. A daughter's mother has to prepare sandwiches on her engagement. Cakes and bolinas, they form an important part on Christmas and other festivals. And, parties and other feasts are meaningless, or they loses their charm, or they lose their charm without bread. So that is why it is very essential for a baker's furnace to exist in a Goan village. Clear, children? The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. What is the meaning of peculiar? Peculiar का मतलब होता है unusual. बड़ी अजीब सी ड्रेस हुआ करती थी. किस वक्त? In previous ancient days, जब Portuguese days थे, जब their elders exist, तब क्या था? उनके पास एक unusual सी ड्रेस होती थी. उस ड्रेस को क्या कहते थे? कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knees. And how did it look like? एक single piece frock हुआ करता था, which used to be till the knees. That means 3/4 जो है उसकी length हुआ करती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt. अब यहाँ पे just pay attention to this कि यहाँ पे uniform जो है उसकी it has changed. यानी कि पहले कैसी uniform थी? It was a kabai. कबाई क्या था? It was a long frock जिसकी सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी विच रीच द लेंथ ऑफ नीज, ठीक है, जो घुटनों तक आया करती थी, नीज तक होती थी. लेकिन यहाँ पे ऑथर हमें एक और चीज बता रहे हैं कि जब ही सॉ बेकर्स, उन्होंने बेकर्स को कैसे देखा है? दे यूज्ड टू वेयर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. हमने डिस्कस किया था when we were discussing that image, वो कैसी थी? A shirt and trousers which were shorter than full length pants and longer than half pants. ठीक है, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि उनकी ड्रेस कैसी हुआ करती थी? व्हाइट शर्ट्स होते थे. देखो, दो ड्रेसेस है, डिफरेंट ड्रेसेस है, तो अपनी इमेज दिमाग में रखना है कि जब पुराने टाइम पे हुआ करता था बिफोर ऑथर, तो कैसी ड्रेस थी? कबाई थी, ठीक है. इट वाज अ वन पीस सिंगल फ्रॉक जिसकी लेंथ कितनी थी? नी लेंथ थी, ठीक है. लेकिन चाइल्डहुड में ऑथर के उन्होंने कैसी ड्रेस बताई है? दे यूज्ड टू वेयर व्हाइट शर्ट एंड ट्राउजर्स. ट्राउजर्स की लेंथ कितनी हुआ करती थी? इट वाज लॉन्गर देन हाफ पैंट्स एंड शॉर्टर देन अ full pant. Clear? Even today, anyone who wears a half pant, आज भी ऑथर क्या बता रहे हैं? अगर आज भी कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है which reaches just below the knees, invites the comment that he is dressed like a pader. और आज भी अगर किसी ने भी उस ड्रेस को पहना होता है, कैसी ड्रेस को? अगर किसी ने ऐसी पैंट पहनी होती है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी हो? हाफ पैंट से लंबी हो और फुल पैंट से छोटी हो, उसको क्या बोला जाता है? कि ये तो पेडर है. ऑलराइट, दैट मींस ही इज अ बेकर बिकॉज इट लुक्स लाइक दैट. और वो उनकी आइडेंटिटी है. किसकी आइडेंटिटी है? पेडर की आइडेंटिटी है. क्लियर? The baker usually collected his bills at the end of the month. Okay, bakers जो हैं वो कैसे? यूजुअली हमारे भी यही होता है, कोई भी चीजें हम जो लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो राशनिंग होती है हमारी, वो कैसे करते हैं? मंथ के एंड में ही हम उसकी बिलिंग करते हैं. उसी तरह से बेकर जो होते थे वो भी अपने बिल्स कब कलेक्ट किया करते थे? बाय द एंड ऑफ द मंथ.
Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Very important. ये आज जैसे how do we record? Either we are going to mark it on the calendar, we are going to make record on in some book or something like that, some notebook. But in previous times, how people used to make records, और सिर्फ बेकर की बात नहीं है, सिर्फ बेकर के बिल्स नहीं ऐसे रिकॉर्ड होते थे, उनके जितने भी अकाउंट्स हुआ करते थे, कोई भी हिसाब हुआ करता था, वो कैसे उसको मैनेज करते थे, वो वॉल पे ही लिखा करते थे पेंसिल से. आज भी अगर आप कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग को या बहुत पुराने घर को विजिट करोगे और अगर उसको रेनोवेट नहीं किया गया है, पेंट नहीं किया गया है, so you will find that there are many records on that wall written in pencil. पेंसिल से बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है उस पे कोई कभी फोन नंबर्स लिख दिया करते थे, उसके बाद में जब थोड़ा सा आगे वी प्रोग्रेस्ड तो तब फोन नंबर भी लिखा करते थे लोग. सो सिमिलरली यहाँ पे क्या तरीका है, हाउ पीपल यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड, दे यूज टू राइट जो भी बिलिंग हुआ करती थी वो कहाँ लिखा करते थे, दे यूज टू मैनेज देयर मंथली अकाउंट्स ऑन वॉल. ठीक है. Baking was indeed a profitable profession in the old days. यानी कि पुराने दिनों में बेकिंग जो था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था. यानी कि इतना प्रॉफिट हुआ करता था क्योंकि हर जगह जो थी ब्रेड की सिग्निफिकेंस थी. हर ओकेजन, हर दिन ब्रेड जो था, लोगों की लाइफ में ब्रेड के बिना their days were incomplete. The baker and his family never starved. Starved का मतलब क्या होता है? Hungry. Okay? यानी कि कभी भी बेकर और उसका परिवार को कभी भूखे नहीं रहना पड़ा, इतना पैसा उनके पास होता था. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. He कौन है यहाँ पे? बेकर है. ठीक है. यानी कि बेकर, बेकर्स फैमिली and even his servants. ठीक है. उनके सर्वेंट्स भी कैसे दिखते थे? They looked happy and prosperous. वो लोग बड़े खुश and they were prosperous. ठीक है. Their plump physique. What is the meaning of plump physique? मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि पर्सन हु इज फैट. ठीक है. फिजिक यानी कि जो हमारा बॉडी अपीयरेंस होता है. ठीक है. अ प्लम्प फिजिक यानी कि कोई ऐसा इंसान हु इज वेरी फैट was an open testimony. टेस्टिमनी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल. टेस्टिमनी क्या होती है? स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल टू दिस. यानी कि जो भी कोई ऐसा प्लम्प फिजिक का होता था, कोई मोटा होता था, तो लोग क्या कहते थे? हाँ, आई थिंक ये बेकर के फैमिली से है, क्योंकि ये जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, ये तो खाते पीते परिवार से है. सिमिलरली जैसे ही कोई प्लम्प फिजिक वाला नजर आता था, कोई मोटा इंसान नजर आता था, समवन वुड लुक फैट, उसको क्या कहते थे लोग? That he is a baker. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance, jackfruit अगर आपने देखा है या नहीं देखा है उसको सर्च करना. जैक फ्रूट एक बहुत ही बड़ा सा फ्रूट होता है. ओके. राउंड इन शेप एंड मोस्टली इट इज फाउंड इन साउथ रीजन ऑफ इंडिया. तो जैक फ्रूट जो है वो इतना बड़ा और मोटा सा होता है, एकदम गोल सा होता है. ठीक है. सो लोग क्या कहते थे उसको कि अगर कोई भी इंसान जैक फ्रूट जैसा नजर आ रहा है तो दैट मीन्स he is easily compared to a baker, because bakers जो थे, उनकी families जो थी, उनके servants जो थे, वो भी ऐसे ही नजर आया करते थे, because their family never starved. उनको कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ी. They had enough money because on every occasion the bakers bread was a must. Okay, it was we can say it was an essential thing. It was an essential part of everyone's life in Goa. Okay, children. So this is about a baker from Goa. जहां पे हमने क्या पढ़ा है कि ब्रेड की कितनी सिग्निफिकेंस है. I never ever had heard of this. ना मैंने कहीं और ऐसा देखा है कि ब्रेड की इतनी सिग्निफिकेंस है. Like everywhere it's bread in the form of bowl, in the form of bolinas, in the form of sweet bread, in the form of cakes. मतलब हर जगह it's bread. Okay, so लेकिन उनके लिए दैट इज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ओके. एंड इसीलिए कहा गया था कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस. सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था. दे नेवर स्टार्व्ड. कभी उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ा, बिकॉज कोई और चीज रहे ना रहे बट बेकर का रहना बहुत जरूरी था, ब्रेड का रहना बहुत जरूरी था. ऑलराइट. दैट इज व्हाई दे वर हाईली ऑन डिमांड. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स डू द ओरल कॉम्प्रिहेंशन. मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट एज मैरिज गिफ्ट्स? मैरिज गिफ्ट्स में क्या होने चाहिए थे? हमने पढ़े थे इट वॉज अ स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. ओके. इट वॉज अ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट क्या होना जरूरी था? ब्रेड. फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट ऑफ कोर्स सैंडविचेस, जो बहुत ही अनयूजुअल है हमारे लिए सुनना, बट यस इट इज ट्रू. फॉर क्रिसमस
Undoubtedly, cakes and holiness. What did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? उनकी ड्रेस क्या थी, बेकर्स की क्या ड्रेस थी? तो पोर्चुगीज डेज में क्या थी उनकी ड्रेस? A long, sorry, one piece long frock reaching to the length of knees. ठीक है? Okay. When the author was young, हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसको. A white shirt and trousers which were shorter than a full length pant and longer than a half pant. Okay? Who invites the comment? He is dressed like a pedder. Why? So, anyone who would look fat. Sorry. It's invited the okay. Dressed like a pedder. Okay. So, किसको कहा जाता था कि ये पेडर है? So हमने पढ़ा है इसको. Anyone who would wear the trousers, right? Anyone who would wear a white shirt and a trousers longer than half pants and shorter than a full length pant. Invited the comment, okay? Invited the comment. और उसके बाद what you are going to write? He is dressed like a pedder. All right? Fine. Where were the monthly accounts of the baker recorded? अभी हमने पढ़ा था. So you can write the monthly accounts of the baker were recorded on the wall in pencil. ठीक है? कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था उनको? वॉल पे रिकॉर्ड किया जाता था. How? By writing with pencil. All right? What does a jackfruit like appearance means? Jackfruit like appearance का क्या मतलब है यहाँ पे? So jackfruit like appearance, a jackfruit like appearance means any person who had a plump physique. Sorry. Any person who had a plump physique, I hope, yeah.
and would look chubby was compared to a jackfruit. Please children, those who have seen jackfruits, good. Those who have not seen what is a jackfruit or how does it look, kindly after the chapter finishes, go on Google, search it and just check how does it look like. Okay, kaisa nazar aata hai. Okay, it's very important for you to know that how does it look like so that you can make an image in your mind. All right, so I hope we have done all the questions. Let's go through it. Agar maine koi mistake ki hai wo bhi we can just check. Okay, so what did the bakers wear in the Portuguese days? A one-piece long frock reaching to the length of knees. When the author was young, a white shirt and trousers which were shorter than a full-length pant and longer than a half pant. Who invites a comment? He's dressed like a pedo. Anyone who would wear a white shirt and trousers, yeah, longer than half pants and shorter than a full-length pant, invited the comment. He's dressed like a pedo. Okay. Where were the monthly accounts of the baker baker recorded? So the answer is the monthly accounts of the baker were recorded on the wall in pencil. All right. What does a jackfruit-like appearance mean? A jackfruit-like appearance means any person who had a plump physique and would look chubby was compared to a jackfruit. Okay. So with this, we have finished part 1 of your chapter 7, Glimpses of India, and part 1 was A Baker from Goa. Now there are 2 more parts that are left so that we can finish our chapters. And we are going to discuss part 2, that is Coorg, and we are going to finish that in our next session. So till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.